ٹکڑے ہو گئے. ہر روز زمین کو روندتے ہیں. کبھی تصور نہیں کیا یہ زمین کیسی کتنی بڑی رب ذوالجلال کی نعمت ہے. کاش ہم نے اس زمین والی ایک نعمت پر غور کیا ہوتا تو ہم کبھی رب کی بندگی سے جی نہ چراتے, رب کا شکر ادا کرتے رہتے, رب کی بندگی کرتے رہتے. آج یہ جب انسان مر جائے رب کہتا ہے وَأَمْوَاتًا, مرتے ہو اگر زمین سینہ نہ کھولتی کہاں ہمارے لاشیں پڑے ہوتے, کتے نوچتے, کوے بوٹیاں نکال کے لے جاتے. رب کہتا ہے حضرت انسان اس زمین کو میں نے سکھایا کہ جب میرا بندہ مر جائے تو نے سینہ کھولنا ہے, اسے محفوظ جگہ عطا فرما دینی ہے کہ یہ میرا بندہ زمین پہ نہ پڑا رہے, اس کا جسم اسے محفوظ کرنا ہے. رب نے زمین کو کھلوا دیا, اس نے محفوظ کر دیا. اگر یہ زمین سینہ نہ کھولتی اور زمین اکڑ جاتی کہتی یہ گنہگار تھا, گناہ کرتا رہا, اسے تو تصور ہی نہیں تھا کہ میں نے زمین میں آنا ہے, اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی زمین کے اندر بھی میں جاؤں گا. میں آج سینہ نہیں کھولوں گی, میں اسے اپنے اندر نہیں جگہ دوں گی. تو سوچو تو صحیح کہاں رہتے, کہاں ہمارے لاشیں پڑے ہوتے, کہاں ہم اپنے مردوں کو رکھتے. کوئی جگہ ایسی نہ تھی. ایک بیٹا باپ کے مرنے کے بعد اس کے لاشے کو کتنے دن گھر رکھے گا؟ 5 دن, 10 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال نہیں رکھ سکتا. آخر تنگ ہو جائے گا, نکالنے کی کوشش کرے گا کہ کہیں پہ نکال دوں. رب کہتا ہے جہاں ماں کی ممتا جواب دے جاتی ہے, باپ کی شفقتیں بھی کندھے پہ اٹھا لیتی ہے, بھائیوں کا پیار بھی ایک چارپائی کا پایا پکڑ لیتا ہے, دوست بھی مٹی ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں. کہا اس وقت ماں کی ممتا سے زیادہ محبت زمین دیتی ہے, باپ کی شفقتوں سے زیادہ شفقت یہ زمین کرتی ہے, دوستوں کے پیار سے زیادہ پیار یہ زمین کرتی ہے. سینہ کھول کے ہمیں باپ کا پیار بھی دیتی ہے, باپ کی شفقت بھی دیتی ہے, اور سینہ کھول کے ہمیں دوستوں کا پیار بھی عطا فرما دیتی ہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے, ہم آخرت کی فکر کو بھول چکے. کتنی بڑی رب کی یہ نعمت ہے, کتنا بڑا رب نے یہ انعام ہم پہ کیا یہ زمین والا. رب ذوالجلال سورہ واقعہ میں فرماتا ہے, فرمایا افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اللہ کہتا ہے یہ کھیتی باڑی جو کرتے ہو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کھیت میں جو بیج بوتے ہو اس کا حارث کون ہے, اسے نکالتا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ استفہام انکاری. اللہ کہتا ہے تم نہیں, میں خود نکالتا ہوں. اب ذرا غور تو کرو, بیج بویا تھا, بے جان تھا. بیج جب کندھے پہ اٹھا کے کھیت کی طرف جا رہے تھے بے جان بیج تھا. اس بیج کو تم نے زمین میں ڈالا تھا, گھر آ کے سو گئے تھے. کیا زمین پر بیٹھ کر اس بیج کے سر پہ پہرا دیا تھا کہ کوئی چیونٹی نکال کے نہ لے جائے, کوئی چڑیا نہ چگ جائے, کوئی اور پرندہ اس بیج کو نکال کے نہ لے جائے؟ تم بو رہے تھے, بو کے گھر آ گئے. ہو سکتا تھا چیونٹی نکال کے لے جاتی, ہو سکتا تھا چڑیا اٹھا کے لے جاتی. تم وہاں پھر مہینوں بیٹھے انتظار کرتے رہتے کہ وہ بیج کب زمین سے باہر نکلے گا. اللہ کہتا ہے اس زمین کو بیج میں بونے کے بعد حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں. اس زمین کو بیج کو بو کے تم گھر آ گئے تھے, حفاظت میں نے کی تھی. اب جب ڈالا تھا تو بے جان تھا. تصور تو کرو اس بیج کو زمین میں زندگی کون دیتا ہے؟ اس کو زندگی اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں. اس بیج کو میں پھاڑتا ہوں. پھر کتنی سخت زمین ہوتی ہے, اللہ کہتا ہے اس بیج کو طاقت میں دیتا ہوں. وہ بیج زمین پھاڑ کے باہر میرے حکم پہ نکلتا ہے. جب نکلتا ہے تو پتلی سی کونپل ہوتی ہے, چڑیا بھی چونچ مارے تو ٹوٹ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے تصور تو کرو, سوچو تو صحیح, اس کونپل کو تنا کون بناتا ہے؟ اس کونپل کو سخت درخت کون بناتا ہے؟ اس درخت پہ پھر ٹہنیاں کون سجاتا ہے؟ ان ٹہنیوں پہ پتے کون لگاتا ہے؟ ان پتوں پہ پھول کون لگاتا ہے؟ پھر ان پھولوں پہ چہکنے کا بلبل کو سلیقہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی اور نہیں, یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں. کس کے لیے کرتا ہوں؟ انسان تیرے لیے کرتا ہوں, تاکہ تیرے لیے کوئی اناج کی کمی نہ ہو, تیرے لیے سبزیوں کی کمی نہ ہو, تیرے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی نہ ہو. تیرے لیے یہ ساری قدرت کا نظام سجایا ہے. تیرے ذمہ ایک کام لگایا ہے کہ تو کھاتا رہے اور میری بندگی کرتا رہے. تو کھاتا رہے, یہ طاقت میری بندگی میں صرف کر
करता रहे। ये फिक्र आखिरत का मजमून है। आज हम भूल चुके हैं। हमें सोचना चाहिए वो रब कितना नेमतें देने वाला है, उस रब ने हमें कितनी नेमतें दी है। रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद के 14वें पारे में इरशाद फरमाता है, फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनाअमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह कहता है कभी एक भैंस को तो देखो, एक भैंस को देखो, देहाती माहौल है, भैंसों को हर रोज चारा भी डालते हो और सुबह शाम एक काम और भी करते हो, उनमें से दूध भी निकालते हो। अल्लाह कहता है कभी गौर किया ये दूध निकलता कहां से है? पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जवाब दे जाएगी। आज साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए, उस साइंस से कहो रब कहता है दूध मैं मिन बैनि फर्थिन व दम, गोबर और खून के दरमियान से दूध निकालता हूं। आज साइंस से कहो गोबर भी देते हैं, खून भी देते हैं, दरमियान से दूध तो निकाल के दिखा दे, साइंस जवाब दे जाएगी। अल्लाह कहता है इस भैंस पे गौर करो, खुद ब खुद आखिरत की फिक्र पैदा हो जाएगी कि रब ने उस भैंस के पेट से दूध कैसे निकाला है। अल्लाह कहता है ना गोबर की बदबू आने देता हूं, ना खून का रंग आने देता हूं। सब्ज रंग का गोबर होता है और सुर्ख रंग का खून होता है, दो सब्ज और सुर्ख के दरमियान से मैं सफेद दूध निकालता हूं। ना उस दूध में वो गोबर की बदबू होती है, ना ही खून का रंग होता है। अल्लाह कहता है ताजा दूध तुम्हें सुबह भी देता हूं, शाम को भी अता फरमा देता हूं। अब गौर तो करो कितनी बड़ी रब की नेमतें हैं, लेकिन आज हम ही ना शुक्र हो गए। हमारे जुबान मुंह में वो जुबान ही ना रही जो रब की शुक्र करने वाली थी। हमारे दिल में वो खौफ ही ना रहा कि हमारा दिल उस खौफ से तड़पता रहता। आज हम रब की आखिरत को भूल चुके, फिक्र आखिरत हमारे दिल से जाती रही। तो मेरे भाइयों इस लिहाज से आज हम लोगों को दोबारा चाहिए कि अपनी जुबानों को शुक्र करने वाला बनाए, अपने दिलों को रब से डरने वाला बनाए, आंखों को रब के खौफ में बहने वाला बनाए, तब जाके रब्बे जुल जलाल इस उम्मत को दोबारा अरूज अता फरमा देगा। दुनिया दारे अमल है, जो करोगे उसी का अजर क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल तुम्हें अता फरमाएगा। ये दुनिया दारे अमल, हर शख्स को चाहिए कि अमल का दामन थाम के जाए। कोई शख्स भी अगर बगैर अमल के जाएगा क़यामत के दिन उसे उसी चीज का अजर मिलेगा जो दुनिया में करके आया। बाकी क़यामत के दिन उसे कोई और इजाफी अजर नहीं दिया जाएगा। जो अमल करेगा उसी का अजर कल क़यामत के दिन पाएगा। अगर दुनिया से बेनमाजी गया तो क़यामत के दिन भी तो बेनमाजी उठेगा। दुनिया में अगर दाढ़ी कटा के गया, ये नहीं कि कब्र में दाढ़ी निकल आएगी। दुनिया में जब बगैर दाढ़ी के था तो कब्र में भी बगैर दाढ़ी के रहेगा और हश्र में भी बगैर दाढ़ी के उठेगा। अगर दुनिया में अंग्रेजी लिबास पहनता था तो कब्र में उसे कफन जो दिया जाएगा। अब ये नहीं कि कफन ये सुन्नत तो है, लेकिन ये सुन्नत उसे क़यामत के दिन बचा नहीं सकेगी, क्योंकि ये सुन्नत तो उसे बाद में दुनिया के लोगों ने पहनाई, उसने खुद तो नहीं पहना था। हक ये था कि दुनिया में रहते हुए कफन पहन के चलता ताकि इसे कब्र की फिक्र रहती। तो मेरे भाई इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया दारे अमल है, अमल ऐसा करके जाए कि कब्र में जाए तो कोई शर्मिंदगी ना होनी चाहिए, क्योंकि कब्र में महबूब ने भी तो तशरीफ लाना है। अगर महबूब तशरीफ लाए, जिस दोस्तों की खातिर आज इस दुनिया के अंदर हम नमाजें तर्क करें, जिन दोस्तों की खातिर आज दाढ़ियां कटाते रहे, जिन दोस्तों की खातिर अमल का दामन छोड़ते रहे, एक वक्त आएगा इस दोस्त से कहना कि जब मर जाऊं तो कम से कम कब्र में 1 मिनट मेरे साथ रहना, फिर चाहे बाहर निकल जाना। खुदा की कसम 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड भी तुम्हारे साथ कब्र में नहीं गुजारेगा। कहेगा यहां तूने अकेले रहना है, तो कब्र में किसने साथ निभाना है? दुनिया के दोस्त तो बाहर रहे, कब्र में फिर भी गुंबते खतरा तो मतू ने तशरीफ लाना है। हक तो ये है कि उम्मती कब्र में जाए, महबूब तशरीफ लाए, शक्ल देख के ही सीने से लगा ले कि कितनी दुनिया की रंगीनियां थी, लेकिन मेरा कितना आशिक था, दुनिया की रंगीनियों को छोड़ के मेरी सुन्नत को अदा करके आया है। अब इस अंदाज में अगर इंसान दुनिया में जिंदगी बसर करे कि जब भी मौत आए तो उसे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये आगे उसके जहन में और दिल में ख्याल ना हो कि एक लम्हा काश मुझे रब और दे दे, एक लम्हा और मिल जाए तो मैं तौबा कर लूंगा, एक लम्हा और मिल जाए गुनाहों से माफी मांग लूंगा। नहीं, हर लम्हा यूं गुजारो कि आखिरी लम्हा गिन गिन के गुजारो, कि हर लम्हा आखिरी लम्हा है। जब भी मौत का वक्त आए तो कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, बिलखुसूस नौजवान भाइयों, बूढ़े तो बुजुर्ग हमारे,
अपनी जिंदगियां बसर कर चुके। बुढ़ों से भी कहूंगा, बुजुर्गों से भी कहूंगा, क्या नफरत है इस सुन्नत से? क्यों तरक करते हो इस सुन्नत को? क्या नफरत है नमाजों से? अब तो बूढ़े हो गए, अब तो सुन्नत पूरी कर लो, अब भी शर्मिंदगी है। तो हमें सोचना चाहिए, जब बूढ़े बूढ़े होके इस सुन्नत को अदा ना करे तो नौजवान नस्ल तो उन्हें देख के नक्शे कदम पे चलेगी। नौजवानों से कहूंगा, कोई बूढ़ा तुम्हें वर्गलाए उस और कहे कि नहीं, जब 40-50 साल के होना तो दाढ़ियां रखना, मुझे को लिख के दे मुझे कि मैं 50 साल तक जिंदा रहूंगा। किसको पता है, क्या कभी इन कंधों पे 20-25 साल के नौजवान का जनाजा नहीं उठाया? क्या इन कंधों ने कभी 30 साल के जवान का मैयत नहीं उठाई? अगर किसी को एक लम्हा पता नहीं तो फिर किस चीज की हम फिक्र में? हर लम्हा। मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया को तरक करो, दाढ़ियां रखो, नमाजें पढ़ो, रब की बंदगी करो। जवानी में की गई इबादत का रेट भी ज्यादा होता है, रब के यहाँ उस बंदगी का रेट भी ज्यादा लगता है जो बंदगी जवानी में की जाती है। बूढ़े हो गए, अब तो वो नफ्स में शहवत ही ना रही, अब तो गुनाह करने की ताकत ही ना रही, अब वो मस्जिद से दिल लगा के बैठा, चलो अब भी हया तो आ गई, लगा तो लिया, लेकिन उसमें अब वो ताकत ही नहीं थी कि वो बाहर जाके गुनाह करता, मुआशरे में बेहयाई करता। नौजवान है वो जवान जिसमें एक तरफ बेहयाई और बुराई करने की ताकत भी है, लेकिन ये हर किस्म की ताकत को वो रब की बंदगी के ज़ेरे साया रखता है। इसे नफ्स कहता है कि चल फिल्में देखने चले, इसे नफ्स कहता है कि दाढ़ी कटाने चले, ये कहता है नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे रब ने हुक्म ही नहीं दिया मुझे। अगर जवानी ऐसे गुजारे तो इस जवानी में बरकत भी बड़ी है। रब्बे जुल जलाल उस नौजवान की जवानी में बरकत भी अता फरमाता है। ये कत्तुर रिजाल है, नेक लोगों का फुकदान है। आज इस माजरे के अंदर हमें वो चेहरे नजर नहीं आते जो चेहरे कभी दाता अली हजवेरी की शक्ल में नजर आया करते थे, जो चेहरे कभी ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में नजर आते थे, कभी ख्वाजा वो कभी बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी की शक्ल में नजर आते थे, कभी हजरत शाहरुख आलम की शक्ल में नजर आते थे। ये कत्तुर रिजाल है। आज इस माशरे के अंदर वो माए भी ना रही जिनके बदनों से पैदा होने वाले बच्चे भी 14-14 पारों के हाफिज हुआ करते थे। आज वो माए ना रही जिनके बदनों से पैदा होने वाले बच्चे अल्लाह के वली हुआ करते थे। आज इस माशरे को हमने अरूज देना है। ये इस्लाम जो बोसीदा होता जा रहा है, इस इस्लाम को दोबारा हमने नई जिंदगी देनी है। वो कैसे होगी कि जिंदगी दारे अमल है, इसमें अमल करेंगे, रब्बे जुल जलाल इस्लाम को दोबारा अरूज अता फरमा देगा। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। और फिर वो लोग जो कहें कि जिंदगी सिर्फ दारे अमल है, जो करोगे कब्र में सिर्फ उसी का अजर मिलेगा और इजाफी कोई चीज नहीं होगी, उस तबके को भी हम समझाना चाहते कि नहीं, अमल करके जाओ। अमल का ताल्लुक बाद में भी जुड़ा रहता है। अल-अदब अल-मुफरद के अंदर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस हदीस को जिक्र किया। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद मगफिरत के असबाब में से 3 सबब फिर भी बाकी रहते हैं। एक सबब यह है अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कि वो नेक औलाद छोड़ जाता है, वो औलाद उसके लिए दुआ करती है, रब कब्र में बाप की मगफिरत फरमा देता है। नेक औलाद मगफिरत का सबब है, जो औलाद वालिदैन के लिए दुआ करती रहे, और ये इंसान की मगफिरत का सबसे बड़ा जरिया भी है कि नेक औलाद छोड़ जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मिशकात शरीफ में भी है, फरमाया मल मय्यितु बिल क़ब्रि इल्ला कल गरीकिल मुतगव्वित यंतज़िरु तअवा मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। महबूब ने फरमाया, मैयत को कब्र में जब रखा जाता है, मैयत पानी में डूबने वाले शख्स की तरह अपने आप को महसूस करती। जैसे पानी में कोई शख्स डूब रहा हो, वो कोशिश करके हाथ बाहर निकालता है, कभी सर बाहर निकालता है कि कोई मुझे देखेगा, हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लेगा। फरमाया मैयत की कब्र में यही हालत होती है, लेकिन वो किसी शख्स का इंतजार नहीं करती। फरमाया यंतज़िरु तअवा, मैयत को कब्र में तुम्हारी दुआओं का इंतजार होता है। अब बाप कब्र में परेशान था, सोच रहा था कि बेटा कब दुआ करेगा, बेटा कहीं नहीं, दुआ शिर्क है, नहीं करूंगा। बाप इंतजार में था कि मेरा बेटा कब दुआ करेगा, रब मेरे लिए
आसानी पैदा करेगा। बेटा कहे नहीं बिदअत है, नहीं दुआ करूंगा। महबूब ने फरमाया मैयत को कब्र में सिर्फ दुआओं का इंतजार होता है। किस किस की दुआ का? फरमाया मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। मैयत को कब्र में बाप की दुआ का इंतजार होता है, माँ की दुआओं का इंतजार होता है, भाई की दुआ का इंतजार होता है। मैयत को कब्र में दोस्त की दुआ का इंतजार होता है। वो इधर से दुआ करते हैं, रब कब्र में उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। लोग आज हमें समझाना चाहते हैं कि कोई सुराख दिखाओ कब्र में जहां से ये दुआ गुजर के अंदर जाती हो। हम कहते हैं शरीयत को अकल पे ना तोलो, शरीयत अकल में नहीं आती। मेरे महबूब के फरमान है, सर निगू करोगे तो रब शरीयत की सारी समझ अता फरमाएगा। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की, महबूब मेरी बहन ने नजर मानी थी, इन्नहा मातत, वो फौत हो गई। उसने नजर मानी थी कि वो हज करेगी, मौसम में हज ही ना आया, उसका पहले इंतकाल हो गया। महबूब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब वो सवाल लेकर आया था कि महबूब मेरी बहन ने हज की नजर मानी थी लेकिन फौत हो गई, हज किया ही नहीं उसने। अब मेरे लिए वो सवाल करने आया, महबूब ने उसके सवाल पर सवाल कर दिया। महबूब ने फरमाया ये बताओ मुझे शख्स, अगर तेरी बहन के सर पे कर्ज होता, किसी के पैसे देने होते, तू वो पैसे उसे देता, अदा हो जाता या ना होता? उस शख्स ने अर्ज की, महबूब वो कर्जा तो अदा हो जाता। महबूब ने फरमाया अल्लाहु अहक्कु बिल क़दा, अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि उसका कर्जा अदा किया जाए। फरमाया जाओ जाके तुम हज करो। फरमाया वो तवाफ़े खाना काबा तुम करोगे, रब कब्र में तुम्हारी बहन को सवाब अता फरमाएगा। फरमाया वो साई तुम करोगे, कब्र में तुम्हारी बहन को सवाब मिलेगा। वुकूफ़ अरफ़ात तुम करोगे, सवाब तुम्हारी बहन को मिलेगा। फरमाया ये मेहनतें तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारी बहन का कर्जा भी उतारेगा, उसे हज का सवाब भी अता फरमा देगा। अब बताओ कौन सा सुराख था जहां से हज गुजर के कब्र में गया और उसका कर्जा अदा हो गया? अकल में सोचोगे तो अकल में नहीं आएगी, ये मानने से आती है। ये मेरे महबूब की शरीयत है। आज हमारी सारी उम्मत की अकलें भी अगर इकट्ठी कर ली जाए तो महबूब की अकल तो अकल रही, ये तो महबूब के एक सहाबी की अकल तक नहीं पहुंच सकती है। अब देख लो महबूब के सहाबी हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं कि एक वक्त मुझ पे ऐसा था कि जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नफरत माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से थी। कहते एक वक्त आया जब मैंने कलमा पढ़ लिया, कहते अब उनसे ज्यादा बढ़ के हसीन चेहरा मेरे नजदीक कोई और नहीं था। अमर बिन आस अपने आखिरी वक्त में अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ये वाज कर रहे थे और साहबी रसूल है, जलीलुल कद्र साहबी, और अपने रिश्तेदारों को बता रहे थे कि अब देखो उस वक्त अगर जब मैं कुफ्र की हालत में था मर जाता तो कोई चीज मुझे जहन्नम जाने से नहीं रोक सकती थी। अब अगर मैंने कलमा पढ़ लिया, अब मरूंगा तो कोई मुझे जन्नत से आने से नहीं रोक सकता। अब कहने लगे, मैं जब महबूब की बारगाह में हाजिर हुआ, मैंने महबूब से अर्ज की, महबूब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, हाथ आगे कीजिए, मुद्दा यदक। महबूब ने हाथ आगे किया। अमर बिन आस कहते हैं मैंने हाथ पीछे कर लिया। महबूब ने पूछा, ए अमर अभी तो तुम कहते थे कि हाथ आगे करो, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, अब मैंने हाथ आगे किया तो तुमने अपना हाथ क्यों पीछे कर लिया? अमर कहते हैं महबूब मैं शर्त लगाना चाहता हूँ, एक शर्त पे कलमा पढ़ूंगा। महबूब ने फरमाया माज़ा तश्तरी तू, अमर क्या शर्त लगाना चाहते हो? हजरत अमर ने कहा इस शर्त पे कलमा पढ़ूंगा, मुझे गारंटी दे कलमा पढ़ूंगा तो मेरे साहब का सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। महबूब ने फरमाया अमर तुझे पता नहीं, इन्नल इस्लाम यहदिनु मा कान क़ब्लहू, कि इस्लाम वो सब कुछ मिटा देता है जो इस्लाम से पहले हुआ होता है। फरमाया इन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा, हिजरत वो सारे गुनाह माफ करा देती है जो हिजरत से पहले हुए होते हैं। इन्नल हज्जा यहदिमु मा कान क़ब्लहू, और हज भी वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं जो हज करने से पहले गुनाह हुए होते हैं। फरमाया कलमा तुम पढ़ो, गारंटी मैं देता हूं कि अल्लाह मेरी निस्बत की बरकत से तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अमर कहते हैं अब मेरा आखिरी वक्त करीब है, अब तवज्जो करना, ये कोई मजनू लैला की दास्तां नहीं, साहबी रसूल का कौल जिक्र कर रहा हूं। और जो उसूले हदीस के मुताबिक जो साहबी रसूल का कौल मावराए अकल हो, वो साहबी रसूल का कौल नहीं, हदीस रसूल अलैहिस्सलाम हुआ करती है, और ये भी मावराए अकल है। इसलिए अमर बिन आस का कौल नहीं, मेरे महबूब का फरमान है। अमर बिन आस कहते हैं मैं मरने वाला हूं, मेरी वसीयत सुन लो। कहा जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे के साथ कोई रोने वालियां औरतें ना हो, कोई रोने वाली औरत ना हो। कहा मेरे जनाजे के साथ आग भी ना लेकर चलना। कहा ये दो बातें, तीसरी क्या है? अब तवज्जो करना। फरमाया जब मुझे कब्र में दफना लेना तो सबसे पहला काम जो तुमने करना है, फरमाया फशुन्नु अलैया तुराब शन्ना, मेरी कब्र पर मट्टी आहिस्ता आहिस्ता डालना।
शन कहते हैं मशकेजे के मुंह पर हाथ रख के पानी छिड़कने को, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके पानी निकलता है, कहा ऐसे मेरी कब्र पे मिट्टी डालना। लोग कहते हैं कब्र और बुत बराबर हैं, हम कहते हैं कब्र और है बुत और है। कब्र और बुत का क्या मुकाबला हो सकता है? अगर कब्र और मोमिन की कब्र और बुत का मुकाबला होना होता तो अमर कहते बस रख देना, जैसे मर्जी मिट्टी डालना, मुझे अंदर क्या पता चलेगा। कहा नहीं, मैं तुम्हारे मिट्टी डालने को भी कब्र में महसूस करूंगा। ये है बंदा मोमिन का एहसास। इसलिए तो महबूब ने फरमाया कब्रुल मुमिनी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, फरमाया मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है। मोमिन की कब्र तो जन्नत का बाग है। वो दूसरे हैं जो कहते हैं हमारी कब्र और बुत बराबर है, उनकी कब्रें जहन्नम का गड़ा है, हमारी कब्रें अहले सुन्नत के हर फर्द की कब्र रब के फजल से वो जन्नत का बाग हुआ करती है। अमर ने कहा मेरी कब्र पर मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता डालना, मिट्टी डाल के फिर क्या करना? फरमाया सुम्मा अकीम हौला कब्री, मेरी कब्र के गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना। कहा जाना नहीं, वहां खड़े हो जाना। लोग कहते हैं बस कब्र में दफनाओ, फौरन कब्रिस्तान से बाहर निकल जाओ। साहबी रसूल का तरीका तो देखो, कहते हैं मेरी कब्र के गिर्द दायरा बना के खड़े हो जाना। कितनी देर? कहा जितनी देर एक ऊंट को पकड़कर बांधा जाता है, बांध के ज़बह किया जाता है, ज़बह करके खाल उतारी जाती, खाल उतार के गोश्त बनाया जाता है, गोश्त बना के तकसीम किया जाता है। कहा जितना वक्त इस अमल में लगता है, इतना वक्त तुमने मेरी कब्र के ऊपर खड़े रहना है। उसका फायदा क्या होगा? कहा हत्ता अस्तानिसा बिकुम माजा उराजिउ बिही रसूल रब्बी, कहा तुम्हारे बाहर खड़े रहने से कब्र में उन्स हासिल करूंगा। लोग कहते हैं बाहर से कोई चीज अंदर नहीं पहुंचती, अमर कहते हैं तुम बाहर खड़े होगे, कब्र में तुम्हारी मोहब्बत पहुंचेगी। अब मोहब्बत कोई सुराख हो तो पहुंचे। लोग कहते हैं शरीयत हमें दिखाओ कि कौन सा सुराख है जहां से साले सवाब अंदर पहुंचता है। अमर कहते हैं मोहब्बत पहुंचेगी, और उस मोहब्बत की बरकत क्या होगी? कहा उसकी वजह से नकीरैन के सवालात के जवाब आसान हो जाएंगे। ये है साहबी रसूल का अकीदा। और आज इसलिए अहले सुन्नह व जमा जब वो मैयत को कब्र में रखते हैं फिर उसके सराहने खड़े हो जाते हैं। एक शख्स कब्र पे आजान देता है और एक वो सूरह बकरा की इब्तदाई आयत और सूरह बकरा की आखिरी आयत उसके कदमों के पास खड़े होकर पढ़ते हैं। इससे बरकत होती है। रब्बे जुल जलाल कब्र में मैयत के लिए आसानी पैदा फरमा देता है। लोग आज कहते हैं कि अजान का हमें कोई सबूत दो कि अजान कहां से साबित है, कब्रों पर अजान देते हो। हम कहते हैं कि अजान की बरकत देखो कितनी है। महबूब ने फरमाया जहां पर अजान दी जाती है तो क्या होता है? दुर्रात के लफ्ज है बुखारी शरीफ में कि शैतान की अजान के जुमले सुनते ही शैतान की हवा खारिज हो जाती है, और जहां तक अजान की आवाज जा रही होती है शैतान उस इलाके को खाली करके बाहर निकल जाता है। अब कब्र में जब मैयत को रखा जाता है फरिश्ते आके पूछते हैं मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? शैतान कब्र में आ जाता है, अपनी तरफ इशारा करता है, क्या मैं तेरा रब हूं। अब जब अजान दी जाएगी शैतान कब्रिस्तान से बाहर निकल जाएगा, फरिश्ते पूछोगे मन रब्बू का, मैयत बोलेगी रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब तो अल्लाह है। ये सारी अजान की बरकत है। तो मेरे भाई इसलिए अजान देना ये बाइस से बरकत है मैयत के लिए कि उसके लिए सवालात के जवाबात मैयत के लिए आसान हो जाते हैं। इस लिहाज से इसाले सवाब ये आले सुन्नह व जमात के शार में से है कि जो इज्तिमा इकट्ठा करके यहाँ पर दुआ कराई जाती है, अपने लिए भी बाकी सारे फौतशुदगान के लिए भी। हो सकता है कौन सा नेक बंदा हो, उस एक नेक की दुआ से अल्लाह हमारी भी और हमारे सारे फौतशुदगान की भी मगफिरत फरमा दे। आखिरी हदीस से बात जिक्र करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हदीस तलकीन किताब रूह के अंदर इब्ने कय्यम ने इसको जिक्र किया। इब्ने तैमिया का शागिर्द है इब्ने कय्यम। ये हदीस तलकीन उसने लिखा कि 7 सदियों तक यानी 700 साल तक इस हदीस पर अमल होता रहा। अब आके इस हदीस पर अमल तरक हो गया। हमने दोबारा इस हदीस को जिंदा करना है और महबूब की सुन्नत को दोबारा जिंदा करना है। ये हदीस तलकीन तवज्जो से सारे समाअत करें और जो भी फौत हो जाए उसकी कब्र पे खड़े होकर हदीस तलकीन जरूर पढ़ा करो। महबूब ने फरमाया मैयत को जब कब्र में रखो तो एक शख्स तुम में से उसके सराने खड़े हो जाए और उसे पुकारे या फुलान अबना फुलाना था, उसे कहे मैयत को ए फलां फलां औरत के बेटे। महबूब ने फरमाया इन्नहु यस्मउ वला युजीब, मैयत कब्र में तुम्हारी आवाज सुनेगी लेकिन जवाब नहीं देगी। अब तवज्जो करना, ये मोमिन की कब्र के बारे में बयान कर रहा हूं। लोग कहते हैं मर गया बस कब्र में दफना दो, अब उससे ताल्लुक खत्म हो गया, ना वो सुनता है ना कुछ करता है ना वो जवाब दे सकता है।
محبوب کیا فرما رہے ہیں اپنے امتی کے بارے میں؟ فرمایا اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے اسے بلاؤ، یا فلان ابن فلانا تھا، اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے۔ محبوب نے فرمایا پہلی مرتبہ جب بلاؤ گے فَإِنَّهُ يَسْمَعُ